ताहले रिफ्रैक्शन कौन ना जो प्रोसेस रे लाइट गोटे मीडियम रु आउ गोटे मीडियम को गला बेले सी ता ओरिजिनल रास्ता रु भांगी जिवो ताकू कोन बोली कहबा हमें रिफ्रैक्शन बोली कहबा। देखो रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन दिटा अलग जिनिस डिफ्रैक्शन डिफ्रैक्शन पढ़िला बेले कहबी एबे रिफ्रैक्शन कौन ना लाइट जो रास्ता रे जाउथबो से रास्ता रु स्लाइटली डेविएट हो जिवो जेंति तमे साइकिल लेके जाउछो समान रास्ता रे जाउछो सीमेंट रास्ता रे हठात बाली पड़ले कोन हो ना तुम हैंडल टगल करिवो हलिवो तमे आ गुटे को डायरेक्शन में पळेबो तले सेटा को कोन बोली कहबा हमें रिफ्रैक्शन बोली कहबा। तार भी सेमती लॉज गुडा को अछि तार सेमती लॉ गुडा को अछि कोन कोन लॉ तार अछि ना फास्ट जोटा कहबी तार तीनटा लॉ अछि के दुईटा भी कहती के तीनटा भी कहती तार तीनटा लॉ अछि गोटे नियम कोन कहूची ना ये होची कोन ना आपातित रश्मि ये होची कोन ना अभिलंब ये होची कोन ना प्रतिश्रुत रश्मि आपातन बिंदु रे अंकित अभिलंब कोडा एटा अंकित अभिलंब एन ओ एन प्राइम अंकित अभिलंब ऑल लाइज ऑन वन प्लेन समस्ते गोटे समतल रे अवस्थान करते स्कूल रे पढ़ी तुमे लघु माध्यम घन माध्यम ताली लघु माध्यम को इंग्लिश रे कहा जाए रेयरर मीडियम आउ घन माध्यम को इंग्लिश रे कहा जाए कोन ना डेंसर मीडियम कहा जाए ताले लघु माध्यम होची रेयरर मीडियम घन माध्यम होची डेंसर मीडियम ताले लघु माध्यम रु घन माध्यम को गला बेले लाइट कोन हो ना अभिलंब आड़ को बंके आसीबो सेही भलिया ये होची कोन ना प्रथम नियम कोन कहूची ना आपात इंसिडेंट रे ओ ए रिफ्रैक्टेड रे ओ बी and the normal lies on the incident point এটা নরমালটা all lies on one plane समस्ते गोटिए समतଳରେ ରହିବେ তাহলে ହେଉଛି ফার্স্ট ল সেকেন্ড ল সে কোন কହୁଛି সেকেন্ড ল କହୁଛି ଯେ ଲାଇଟ ଯଦି ରେୟାର ମିଡିୟମ ରୁ ଯଦି ଡେନ୍ସର ମିଡିୟମ କୁ ଯାଉଥିବ ରେୟାର ମିଡିୟମ ରୁ ଡେନ୍ସର ମିଡିୟମ କୁ ଯାଉଥିବ ତାହଲେ ସେ କଣ ହବ deviates towards the normal ସିଏ ନର୍ମାଲ ଆଡକୁ ଡେଭିଏଟ ହେଇଯିବ ଯଦି ଲାଇଟ ଟେ ଡେନ୍ସର ମିଡିୟମ ରୁ ରେୟାର ମିଡିୟମ କୁ ଯାଉଥିବ ତାହଲେ ସେ କଣ ହବ ନା ଡେଭିଏଟ୍स from the normal ସିଏ ଅଭିଲମ୍ବ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବ ସେ କଣ କହିଲା ନା ଲାଇଟ ଯଦି ରେୟାର ମିଡିୟମ ରୁ ଡେନ୍ସର ମିଡିୟମ କୁ ଆସୁଥିବ ସେ କଣ ହବ ନା ସେ ଅଭିଲମ୍ବ ଆଡକୁ ବଙ୍କେଇ ଆସିବ ଯଦି ଲାଇଟ ରେୟାର ମିଡିୟମ ରୁ ଡେନ୍ସର ମିଡିୟମ को ଯାଉଥିବ ସରି ଓल्टा ଡେନ୍ସର ମିଡିୟମ ରୁ ରେୟାର ମିଡିୟମ ଆଡକୁ ଯାଉଥିବ ସିଏ ଅଭିଲମ୍ବ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବ ତାହେଲେ ଏତିକି ହେଉଛି ପାଠ ଆଉ ଯୋଉ ମଝିରେ ଯୋଉ ରହିଗଲା ୟାକୁ କଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନା ଇଣ୍ଟରଫେସ ଦିଟା ମିଡିୟମ ର ଜଏନିଂ କୁ କଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନା ଇଣ୍ଟରଫେସ କାହାକୁ କହିବା ନା ଜଏନିଂ ଅଫ ଟୁ ମିଡିଆ ଦିଟା ମାଧ୍ୟମର ଜଏନିଂ ଜାଗାଟାକୁ କଣ ବୋଲି କହିବା ଆମେ ଇଣ୍ଟରଫେସ ବୋଲି କହିବା ତାହେଲେ ଇଏ ହେଉଛି ତାର ସେକେଣ୍ଡ ଲ କଣ କହୁଛି ସେକେଣ୍ଡ ଲ ଦେହରେ ଆଉ କଣ ଆଟାଚ ହେଇକି ଅଛି ସେକେଣ୍ଡ ଲ ଦେହରେ ଆଉ କଣ ଅଛି ନା when ଯେତେବେଳେ ଲାଇଟ ଟା ତୁମର ଗୋଟିଏ ମିଡିୟମ ରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମିଡିୟମ କୁ ଯାଉଛି ତାର କଣ ହଉଛି ନା ତମେ ଜାଣିଛ ଫର୍ମୁଲା ଗୋଟେ ଅଛି velocity equal to frequency into wavelength v equal to f lambda ଅଛି ସେ କଣ କରେ ନା ଲାଇଟ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ମିଡିୟମ ରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମିଡିୟମ କୁ ଟ୍ରାଭେଲ करे ଆମେ କଣ ଜାଣିଛେ ସାଇକେଲ ନେଇକି ଯାଉଛେ ଆମର ଭେଲୋସିଟି ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି ତାହେଲେ ଡେଫିନେଟଲି ଭେଲୋସିଟି କମ या ବେଶୀ ହଉଛି ଯଦି ଭେଲୋସିଟି ଏପଟେ ବଢିବ ତାହେଲେ ଏପଟେ କଣ ହବ ନା ୱେଭଲେନ୍ଥ ବଢିବ ଯଦି ଭେଲୋସିଟି କମିବ ତାହେଲେ ୱେଭଲେନ୍ଥ କମିବ କିନ୍ତୁ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଟର୍ମ ଯୋଉଟା ସିଏ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ এইটা ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବ ପିଲା କନଫ୍ୟୁଜ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତି ଫର୍ମୁଲା ବନି ଥାଏ ନା v equal to f lambda ସେ ଭାବନ୍ତି ଯେ v ବଢିଲେ ଏପଟେ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ବଢିଯିବ ନାଇଁ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି କେବେ ବି ଚେଞ୍ଜ ହବନି ଇଏ ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ଲ କଣ କହୁଛି ନା ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଆଦୌ ଚେଞ୍ଜ ହବ ନାହିଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲ ସହିତ ଆଟାଚ କରିଦିଅ ଏଇ ଦି ଜଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲ କଣ ନା ଲାଇଟ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ମିଡିୟମ ରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇଟ ହଉଛି ସମସ୍ତେ କଣ ନା ଗୋଟିଏ ପ୍ଲେନରେ ରୁହନ୍ତି ରେୟାର ମିଡିୟମ ରୁ ଡେନ୍ସର ମିଡିୟମ ଗଲା ବେଳକୁ ଲାଇଟ ନର୍ମାଲ ଆଡକୁ ପଳେଇ ଆସେ ଡେନ୍ସର ମିଡିୟମ ରୁ ରେୟାର ମିଡିୟମ କୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଲାଇଟ ନର୍ମାଲ ଟୁ ଦୂରେଇ ଯାଏ याकू फास्ट नियम कर दबो सेकंड नियम कौन करिवो ना जेतेबेले लाइट गोटे मीडियम रो आ गोटे मीडियम को जाउथबो तार फ्रीक्वेंसी आदो चेंज होबो नाही चेंज कोन होबो ना परिवेश वेलोसिटी तो चेंज होची जेन्युइनली हमें साइकिल एक्सपेरिमेंट रू जानि करछे ताले वेलोसिटी चेंज होची
ताले वेलोसिटी जदि चेंज होती एपटे भी चेंज हो किए चेंज हो ना वेवलेंथ चेंज हो वेलोसिटी बढ़िले वेवलेंथ बढ़ियो वेलोसिटी कमिले वेवलेंथ कमियो किंतु फ्रीक्वेंसी जो लाइट रही सी सब बेले कांस्टेंट ही रहिबो ये होची तार सेकंड लॉ थर्ड लॉ टा जोटा तुम फेमस जोटा तुम जानिछ स्नेल्स लॉ बोली स्कूल रु जानिछ ताको स्नेल्स लॉ बोली कुआ जाय सी कोन कुए ना ये होची तार रिफ्रैक्शन सी कोन करछि ना अविलंब ठू दूरे छि एठी तमाने निश्चित भाव डेंसर मीडियम रु रेयर मीडियम को आसी एई जो एंगल टा कोन बोली कुआ जाय ना आपातन कोन कुआ जाय आर जो रिफ्लेक्शन पढ़ैथिली ये होची आपातन कोन याकू कुआ जाय प्रतिसरण कोन ये खाली अधिका प्रतिफलन कोन न होई कि कोन हिची ना प्रतिसरण कोन बा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हिची एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन प्रतिफलन कोन ताहले स्नेल्स लॉ कोन कहूची ना द साइन एंगल सबटेंडेड बाय द इंसिडेंट एंगल अर्थ से कोन कहूची the ratio between what sine angle subtended by the incident angle किए सी ताले ऑटोमेटिकली साइन है कि बुझौछि the ratio between sine angle subtended by the incident angle and sine angle subtended by the refracted angle sine angle subtended by the refracted angle किए सी sin r will be a constant the ratio between sine angle अर्थात sin i by sin r is equal to कौन हबो ना गोटे कांस्टेंट हबो सेही कांस्टेंट टा कौन बोली कहया हमें ताकू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोली कहया सेही कांस्टेंट को कौन बोली कहया ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कौन ना सेकेंड मीडियम with respect to फास्ट मीडियम सबु बेले सेकेंड मीडियम को फास्ट धरिबा सेकेंड मीडियम टा को आगे नबा फास्ट मीडियम को परे नबा ताले सब बेले कोन हबो ताले एठी कोन हबो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कार हबो ना सेकेंड मीडियम माने किए रेयरर मीडियम फास्ट मीडियम किए डेंसर मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुआ जाए और ताकू प्रतिसरण कोन ताकू प्रतिसरणांक कुआ जाए ताले जीए थाए ऊपरे ताकू एठी तळे लिखा जाए जीए थिबो तळे ताकू रखा जाए ऊपरे ताले म्यू डी आर जदि मोर एई नियम टा जदि मोर एई भलिया ही जाइथिबो डायग्राम टा एम्ति हेइथिबो जे लाइट ट्रैवल करथुबो एम्ति आस्तुबो सब बेले सेकेंड सहित फास्ट को कंपेयर करा जिवो त माने रेयरर मीडियम रो आसुची डेंसर मीडियम को आसुची ये होची तार आई एंगल ये होची तार आर एंगल नियम कोन लिखिबी ना सेमिति sin i बाय sin r इज इक्वल टू म्यू कोन लिखिबी म्यू कोठी अछि सेकेंड मीडियम कोटा तार डी टा फास्ट मीडियम होची एटा ताले म्यू डी बाय म्यू आर और इक्वल टू लिखिबी केते ना म्यू डी आर लिखिबी एई वाला वे रे ताको लिखा जाय तो केही केही ऊपर भी लिखंती केही केही तळे भी दिटा सारा लिखंती मु पिला को कंफ्यूज हे जिवो सेई पे एई वाला करे मु कोन ना जे एठी थिबो से सीधा सीधा रहिबो ताको मन रखियंती जे सीधा सीधा रे रखि दबा आर को आर हो डी हो जे रहिबो से कोन ना सीधा सीधा रहि जिवो बाकी गोटे को डायगोनल कर्ण भलिया करके रखि दबो ताले कंफ्यूजन क्लियर कोटा आगे कोटा पछे आसीबा दरकार नै तमे नियम पकेबो कोन 2 नंबर सेकेंड वर्सेस फास्ट सेकेंड सहित कौन करिवो फास्ट को रिप्लेस करिवो आउ गोटे को सीधा सीधा पके दबो सेकेंड टा को सीधा सीधा पके दबो आउ जोटा फास्ट रखथबो ताको ऊपर को रखि दबो बस तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जिवो आउ तुम्हारा कंफ्यूजन आसीबोनी बहुत पिलांकर कंफ्यूजन आसे ए जगह रे ताले कोन हबो ताको एटा कोन बोली हमें कहबा ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोन पढिबा को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम आकु पढिबा कोन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम ताले एति की होची यार पाठ एति होची तार लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन गुडा को तुम माने स्कूल रे पढिथिबो कोन पढिथिबो ना आयत घनाकार काच मध्य रे लाइट कोन हुए ना समांतर होई गति करे एटा स्कूल रे थिला ये देखो लाइट आसला एमती ये एई जगह रे अभिलंब होची एटा सी एमती अभिलंब आडू को बंकेइबो काहे कि एठी तो एयर अछि एठी ग्लास अछि एयर टा होची रेयरर मीडियम टा ग्लास टा होची डेंसर मीडियम टा ताले से अभिलंब आडू को बंकेइबो जदि अभिलंब आडू को बंकेइला ताले एमती आसी पडिला से एठी पुणी एई जगह रे अभिलंब होची एटा ये कोन करिवो
ନା ଡେନ୍ସର ମିଡିୟମ ବାହାରେ କ'ଣ ରହିଯାଇଛି, ଏୟାର ରହିଛି, ତାହେଲେ ପୁଣି ରେୟାର ମିଡିୟମ ପାଇଲା, ତାହେଲେ ସେ ଅବିଲମ୍ବଠୁ ଦୂରେଇବ, ଦୂରେଇଲେ ଏଇଭଳିଆ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ହବ ନା ଟୋଟାଲ ସିଏ ଗୋଟେ ସମାନ୍ତର ହେଇକି ଯାଉଥିବ, ଦେଖ ଏମାନେ ସମାନ୍ତର ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ଲାଇନ ଟା କ'ଣ ଅଛି ନା ସମାନ୍ତର ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆମେ ସ୍କୁଲରେ ପଢିଥିଲେ ଯେ ଆୟତଘନାକାର କାଚ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆଲୋକ ସମାନ୍ତର ହୋଇ ଗତି କରେ, ଏଇଟା ଥିଲା ସ୍କୁଲରେ। ତାହେଲେ ଏଇ ଚିତ୍ରଟା ବୁଝି ହେଇଛି। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନା ଯଦି ମୁଁ ଆକୁ ନାଁ ଦେଇଥିବି, ନାଁ ଆଉ ଦବାକୁ ଜାଗା ନାହିଁ ହାତରେ, ଇଏ ହେଉଛି ଆଇ, ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ଆର୍, ଇଏ ହେଉଛି ପୁଣି ଆଇ ଗୋଟେ, ଆଇ ପ୍ରାଇମ ନାଁ ଦଉଛି ତାକୁ, ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆର୍ ପ୍ରାଇମ ନାଁ ଦେଲି। ତାହେଲେ ଦେଖିଲ ଇଏ ଆ ସହିତ ସମାନ୍ତର, ଏଇ ଲାଇନ ସହିତ ସମାନ୍ତର, ଏମାନେ ଦି ଜଣ ଏକାନ୍ତର କୋଣ ଗୁଡାକ। ତାହେଲେ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା ନା r ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଆଇ ପ୍ରାଇମ, ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ଆସିଲା r ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଆଇ ପ୍ରାଇମ, ଆଉ ପୁଣି ଏମାନେ ଏକାନ୍ତର, ତାହେଲେ i ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ ହବ r ପ୍ରାଇମ। ଏଇ ଦିଟା କ'ଣ, ଯଦି ଏଇଥିରେ ଡାଇଗ୍ରାମ କନଫ୍ୟୁଜ ହଉଛି ଆଉଥରେ ବଡ କି କରିଦଉଛି, କନଫ୍ୟୁଜ ହଉଥିବ କାଳେ। ଇଏ ଲାଇଟ ଏମିତି ଆସିଲା, କୋଉଠି ଆସିଲା ନା ଏୟାର ମିଡିୟମରୁ, ଏୟାର ମିଡିୟମଟା ରେୟାର ମିଡିୟମ ଲଘୁ ମାଧ୍ୟମ, ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଡେନ୍ସର ମିଡିୟମ, ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ଗ୍ଲାସ ଯୋଉଟା କାଚଟା, ପୁଣି ସେ ଗଲା କୋଉଠି ନା ଏୟାର ମିଡିୟମକୁ ରେୟାର ମିଡିୟମକୁ ଗଲା, ତାହେଲେ ଏଇଭଳିଆ ଥିଲା। ତାହେଲେ ଇଏ ହେଉଛି ତାର ନର୍ମାଲ, ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ଅବିଲମ୍ବ ଆଡକୁ ବଙ୍କେଇବ, ବଙ୍କେଇଲା ଅବିଲମ୍ବ ଆଡକୁ, ପୁଣି ଏଇ ଜାଗାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅବିଲମ୍ବ ତିଆରି ହେଇଛି, ତାହେଲେ ସିଏ କ'ଣ କରିବ ଏବେ ପୁଣି ଡେନ୍ସରରୁ ରେୟାର, ଡେନ୍ସରରୁ ରେୟାର ହେଲେ କ'ଣ ହବ ନା ସିଏ ଏମିତି ଅବିଲମ୍ବଠୁ ଦୂରେଇ ଯିବ। ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସେପଟେ ସମାନ୍ତର ହେଇକି ଯାଉଥିବେ, ଦେଖ ସମାନ୍ତର ହେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଇଏ ହେଉଛି ତାର ଆପାତନ କୋଣ ଆଇ, ଇଏ ହେଉଛି ତାର ପ୍ରତିସରଣ କୋଣ R1, ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ସେକେଣ୍ଡର ଆପାତନ କୋଣ ଆଇ ପ୍ରାଇମ, ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆର୍ ପ୍ରାଇମ। ତାହେଲେ ଡାଇଗ୍ରାମରୁ କ'ଣ ଜଣା ପଡୁଛି ଦେଖିଲ, ଇଏ ଆ ସହିତ ସମାନ୍ତର, ଇଏ ହେଉଛି ଛେଦକ, ତାହେଲେ ଏମାନେ ଏକାନ୍ତର କୋଣ ଗୁଡାକ। ତାହେଲେ R1 କାହା ସହିତ ସମାନ, ଆଇ R1 ହେଉଛି କାହା ସହିତ ସମାନ, I1 ସହିତ ସମାନ, ଆଉ କ'ଣ ସମାନ ନା I ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କାହା ସହିତ ସମାନ ନା R ପ୍ରାଇମ ସହିତ ସମାନ। ଏଇଟା ସ୍କୁଲରେ ଥିଲା, ଖାଲି ମୁଁ ଟିକେ ଡିଟେଲ ଖାଲି ଲେଖିଦେଲି ତାକୁ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବ, ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ପକାଏ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କଲି। ଆଉ କ'ଣ ଆଦେହରେ ଅଛି, ଆଉ ଅଛି କ'ଣ ନା ସବୁବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରତିସରଣାଙ୍କଟା ଅଛି, ଏଇ ଥାର୍ଡ ଲର ପଏଣ୍ଟ ଚାଲିଛି, ଥାର୍ଡ ଲର ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ନା ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରତିସରଣାଙ୍କଟା ଅଛି, ସିଏ ସବୁବେଳେ ଇନଭର୍ସଲି ପ୍ରୋପୋର୍ସନାଲ ଟୁ ଭେଲୋସିଟି ରହିବ। ସେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରିବ ନା ଇନଭର୍ସଲି ପ୍ରୋପୋର୍ସନାଲ ଟୁ ଭେଲୋସିଟି ରହିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଖ ବାଲି ନେଇକି, ବାଲି ଅଛି ଧରାଯାଉ, ତାହେଲେ ବାଲି ଅଛି ଗୋଟେ ରାସ୍ତାରେ, କ'ଣ ନା ତମେ କ'ଣ ନା ସିମେଣ୍ଟ ରାସ୍ତା ଅଛି, ସିମେଣ୍ଟ ରାସ୍ତା ମାନେ ତମକୁ ବାଧା ଦେବାକୁ କେହି ନାହିଁ, ଏୟାର ଅଛି ଖାଲି, ଆଉ କେହି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବାଲି ପଡ଼ିଲେ କ'ଣ ହବ ନା ଚକଟା ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଏୟାର ଥିଲା ସେଇ ଜାଗାରେ ଏବେ ବାଲି ରହିଗଲା। ଭଲ କି ଭାବିକି ଦେଖ, ଚକଟା ଫ୍ରିଲି ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଯାଉଛି କୋଉଠି ସିମେଣ୍ଟ ରାସ୍ତାରେ, ଯଦି ତୁମେ ବାଲିରେ ପଶୁଛ ତାହେଲେ ବାଲି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଏୟାର ଥିଲା ଏବେ ସେଇ ଜାଗାରେ ବାଲି ରହିଗଲା, ତାହେଲେ ମିଡିୟମ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା, ମିଡିୟମ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ତାର ଭେଲୋସିଟି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ବାଲିଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏୟାର ଠୁ ଅଧିକା ଡେନ୍ସର, ତାହେଲେ ଯଦି ଡେନ୍ସର ମିଡିୟମ ରହିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ, ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ ଯେ ରିଫ୍ରାକ୍ଟିଭ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଯଦି ବଢି ବଢି ଚାଲିଲା, ଭେଲୋସିଟି କ'ଣ ହବ ନା ଖସି ଖସି ଚାଲିବ। ଏମାନେ ସବୁବେଳେ ଇନଭର୍ସଲି ପ୍ରୋପୋର୍ସନାଲ। ଯଦି ଆମେ କମ୍ପାରିଜନ ଏୟାର ସହିତ କରୁଥିବା, କମ୍ପାରିଜନ କାହା ସହିତ ନା ଏୟାର ସହ ହଉଥିବ, କମ୍ପାରିଜନ ଏୟାର ୱିଥ ଏୟାର, କମ୍ପାରିଜନ ୱିଥ ଏୟାର, ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ ନା ମ୍ୟୁ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ସି ବାଇ ଭି ବୋଲି ଲେଖିବା। ସି ବାଇ ଭି, ସି ଭ୍ୟାଲୁ କ'ଣ ନା ସି ହେଉଛି ଭେଲୋସିଟି ଅଫ ଲାଇଟ୍ ଇନ୍ ଏୟାର, ଯୋଉଟା କି ଆମେ କହୁ କି 3 × 10⁸ ମିଟର ବାଇ ସେକେଣ୍ଡ ବୋଲି କହୁ, ସ୍କୁଲରୁ ଜାଣିଛ ଏଟା। ଭେଲୋସିଟି ଅଫ ଲାଇଟ୍ କେତେ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମରେ ବା ଶୂନ୍ୟରେ ବା ଏୟାରରେ କେତେ ନା 3 × 10⁸ ମିଟର ବାଇ ସେକେଣ୍ଡ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଭି କହୁଛ, ଏଇ ଭି ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଯୋଉ ମାଧ୍ୟମରେ ଏବେ ତୁମେ ଲାଇଟକୁ ମୁଭ୍ କରୁଛ, ଧରାଯାଉ ମୁଁ ଗ୍ଲାସରେ ମୁଭ୍ କରିବି, ତାହେଲେ ଗ୍ଲାସରେ ମୁଭ୍ କରିଲେ ଭେଲୋସିଟି କୋଉଠି ହବ, ଗ୍ଲାସର ଭେଲୋସିଟି। ଯଦି ମୁଁ କହିବି ୱାଟରରେ ମୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ୱାଟରର ତାର ଭେଲୋସିଟି। ଏବେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କରିବା, ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଟିକେ ଡିଟେଲ ବୁଝି ହବ। ଦେଖ ମୁଁ କହିଲି ମତେ ଗିଭେନ ଡାଟା କ'ଣ ଅଛି, ଗିଭେନ ଅଛି ଯେ ମତେ ରିଫ୍ରାକ୍ଟିଭ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ କାହାର ନା ଗ୍ଲାସର ୱିଥ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଟୁ ଏୟାର କେତେ ଦେଇଛି ନା 1.5 ଦେଇଛି। ମାଗିଛି ଯେ ଭେଲୋସିଟି ଅଫ ଲାଇଟ୍ ଇନ୍ ଗ୍ଲାସ କେତେ ହବ, ମୁଁ ଜାଣିନି, କେମିତି ବାହାର କରିବି ନା ମତେ ଫର୍ମୁଲା ଦିଆହେଇଛି ଭେଲୋସିଟି ଅଫ ଗ୍ଲାସ ୱିଥ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଟୁ ଏୟାର, ସରି ରିଫ୍ରାକ୍ଟିଭ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ କେତେ ନା 1.5, ଯୋଉଟା କି ୟା ମାନେ କ'ଣ, ୟା ମାନେ ହେଉଛି ଗ୍ଲାସ ମ୍ୟୁ ଜି
बाय म्यू ए मु कहिछि सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू फास्ट सीधा सीधा रखिबो आको बाकी को कर्ण नै जिवो ताले म्यू जी रो वैल्यू केते देइछि 1.5 वायुमंडल रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सब बेले मन रखियो 1 बोली 1 मु कहिछि कोन ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल सेमान को वेलोसिटी कहा सहित इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ताले वेलोसिटी ऑफ ग्लास एंड वेलोसिटी ऑफ एयर रे लाइट रे वेलोसिटी केते एंड ग्लास रे लाइट रो वेलोसिटी केते ताले कोन बाहरला हमर 1.5 by 1 इज इक्वल टू वेलोसिटी एयर रे केते c एयर रे c बोली कहा जाए ना c by v ग्लास एयर रे c बोली कहा जाए ताले 3 into 10 to the power 8 by v of ग्लास एई प्रॉब्लम टा ही पर्टिकुलरली पकई दे परीक्षा रे ताले ये केते हो 2 हे जो ताले v of ग्लास इज इक्वल टू केते ना 2 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड एटा होची तार केमती बाहरला वेलोसिटी सेही भला वे रे त माने वाटर रे भी काढी परियो वाटर रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जे देइथो 1.33 किबा वाटर तार वेलोसिटी देइथो व्हाटएवर किछि भी देइथो वेलोसिटी कोन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देइथो किबा वेलोसिटी देइथो तमे एई फार्मूला जे सिखिथिबो आ ठीक से अप्लाई करि परथुबो सी परीक्षा रे करि परिबो ताहले एई जो मु पकोउची गोटे फार्मूला ना म्यू इज इक्वल टू c बाय v पकोउची फार्मूला टा मोर फार्मूला कोन तले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू c बाय v एई जो c म्यू लेखुची ना याकू कोन कहै ना एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहै जाय एब्सोल्यूट केते बेले कहै जाय कहला जेते बेले एयर सहित कंपैरिजन होतबो सेते बेले हम तो कोन बोली कहबा ना एब्सोल्यूट बोली कहबा एठी c कोन लाइट वेलोसिटी इन एयर तेणु एयर सहित कंपैरिजन होउची जदि एयर सहित कंपैरिजन होउची जदि एयर सहित से कंपैरिजन हला ताको कोन बोली कहबा हमें एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोली कहबा एबे पढ़िया तार डिफरेंट डिफरेंट फेनोमेना गुड़ाक सब ये गला एति ताले आमे कोन जानिले जे जदि सी डेंसर मीडियम रु रेयरर मीडियम आड़ को जाउथबो ताले से कोन हबो ना डेविएट्स फ्रॉम द नॉर्मल डेविएट्स फ्रॉम द नॉर्मल सी अभिलंब ठू दूरे जिवो सी अभिलंब ठू दूरे जिवो एबे देखो ताले तीनटा फेनोमेना पढ़िबा एबे ताले ये होची सब गुडा डेंसर रु रेयरर जिवो सब गुडा को डेंसर रु रेयरर जाउथबो ये होची लाइट आसी पड़िला बोका ही जाउची लाइट आसी पड़िला आ मु कोन कहिली ना डेंसर रु रेयरर आड़ को आसिले सी अभिलंब ठू दूरे जिवो ताले सी ठीक अभिलंब ठू दूरे भी गला ताले एठी देखिला आई आउची आर एठी हमें निश्चित भाव जानी गले कोन ना आर इज कोन पाउचे हमें एठी लिखुची काई एटा परे काम रे आसीबो कोन पाइचे हमें हमें जानिचे नियम जानिचे जे sin i by sin r इज इक्वल टू कोन ना गोटे कांस्टेंट हुए जोटा कि हमें कोन बोली कहू ना प्रतिसरणक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोली कहू ताले sin i इज इक्वल टू केते हे जिवो दैट कांस्टेंट म्यू इनटू sin r हे जिवो अर्थात लिखि परिबी sin i इज प्रोपोर्शनल टू sin r लिखि परिबी दी पटे जदि sin इनवर्स नै जिबे i इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r ताले i को हमें जते बढ़ेई बढ़ेई चलिबा r भी सही हिसाब रे बढ़ी बढ़ी चलिबो i जदि बढ़िबो ताले r भी बढ़िबो देखो एटा उस तरह फार्मूला स्नेल्स लॉ sin i by sin r इज इक्वल टू म्यू कांस्टेंट जदि sin i इज इक्वल टू ताले कोन करिया म्यू तादर मल्टीप्लाई कर देबा sin r ताले sin i ये तो कांस्टेंट ना ताले प्रोपोर्शनल आसी गला कहा सहित sin r सहित ताले i कहा सहित प्रोपोर्शनल होची r सहित ऊपर ऊपर जदि एपटे भी sin इनवर्स एपटे भी sin इनवर्स और तुम बुद्धि पके कि दी पटो sin काट दबो सेमति काटी हुए ने एक्चुअली sin इनवर्स नबाक पड़े कि तुम बुद्धि रे तुम एते चिंता करि परिबो तुम डायरेक्ट काट दबो कोन ना sin कैंसिल हे गला सो i इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r जदि i इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r तार माने कोन कहूची सी जदि i बढ़िबो सेपटे r भी बढ़िबो जदि i कमिबो एपटे r भी कमिबो ताले ये होची तार फर्स्ट नियम गला एटा होची कोन ना गोटे साधारण टाइप रो गोटे रिफ्रैक्शन टा ये ओनली गोटे रिफ्रैक्शन आ किछि नै खाली सिंपल रिफ्रैक्शन टा को बुझौची एबे कोन देखिबा ना सेकेंड टाइप डायग्राम रे मु कोन कली ये होची इंटरफेस सेकेंड टाइप डायग्राम रे ये होची नॉर्मल एबे कोन कली ना ये जो आई टा को आउ टिकिए बढ़ाई देली आई जेति की थिला ताको आउ टिके बढ़ाई देली तले आउ टिके बढ़ाई देले कोन हो ना आर भी आउ टिके बढ़ी जिवो आर बढ़ी की कोन हला ना पूरा ऊपर ऊपर गला इंटरफेस ऊपर ऊपर गला प्रतिश्रुत रश्मिटा पूरा इंटरफेस ऊपर ऊपर गला जहा फल कि आर एंगल टा
केते हे गला ना 90 डिग्री हे गला ताले एई समय रे हमें ताको कोन बोली कहबा ना क्रिटिकल एंगल बोली कहबा ताले एई समय जो आपातन कोणटा अछि ताको कोन बोली कहबा ना क्रिटिकल एंगल बोली कहबा भलो कि सुनो यार तीनटा डेफिनेशन जनरेट हबो परीक्षा रे जदी पढिथिबो व्हाट इज क्रिटिकल एंगल तमे लिखिबो कोन द एंगल ऑफ इंसिडेंस द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर व्हिच द रिफ्रैक्टेड रे इज नॉर्मल टू द नॉर्मल देखो नॉर्मल प्रथम इज नॉर्मल टू द नॉर्मल कहबा तुम कंफ्यूज हो जाउछ तेणु कोन कहबो द रिफ्रैक्टेड रे इज परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल रिफ्रैक्टेड रे निजे कोन रहउची ना 90 डिग्री हे जाउची काहा को अभिलंब को 90 डिग्री हे जाउची तले ये गोटे टाइप रहला आ गोटे डेफिनेशन हमें कोन कहि परिया the critical angle is defined as the angle of incidence when the refracted angle becomes 90 degree जते बेले कि रिफ्रैक्टेड एंगल टा कोन हे जिवो ना 90 डिग्री हे जिवो तले ये गोटे टाइप रो डेफिनेशन हे गला ताले एई भलिया तुमको एनी हाउ तुमको कहिबार अछि कोन जेमिति लैंग्वेज रे कहउछ को तमे कहिबो कोन ना जदी लाइट टा ट्रैवल कला रिफ्रैक्टेड रे टा ट्रैवल कला कहा परे इंटरफेस ऊपर आउ कहि परिबो थर्ड डेफिनेशन केमिति कहि परिबो ना इट इज द इंसिडेंस एंगल the critical angle is defined as the incident angle when the refracted ray travels on the interface refracted ray से कौन करूची फास्ट कहउची कोन ना refracted ray travel on the interface ये होची फर्स्ट डेफिनेशन अनुसार सेकंड डेफिनेशन कौन कहउची सेकंड डेफिनेशन अनुसार कौन कहउची ना एमिति गोटी इंसिडेंट हमें इंसिडेंट एंगल सिलेक्ट करबा जहा पर कोन हो ना रिफ्रैक्टेड एंगल टा 90 डिग्री हे कि जिवो ये होची सेकंड डेफिनेशन थर्ड डेफिनेशन से कौन कहउची एमिति भाबरे हमें इंसिडेंट एंगल को चूज करबा जेमिति कि रिफ्रैक्टेड रे टा परपेंडिकुलर हे जिवो काहा को नॉर्मल को 90 डिग्री हे कि जिवो ताले ये होची कोन ना क्रिटिकल एंगल एई कंडीशन टा को कोन बोली कहै छै ना क्रिटिकल एंगल बोली कहै छै ये होची क्रिटिकल एंगल तापरे कोन ना थर्ड नियम 3 नंबर डायग्राम कोन बुझिली 3 नंबर डायग्राम ना ये रहिची इंटरफेस एठी देखो लाइट कोन होची ना एई एंगल को एबे आहुरी बढ़ाई देली एई एंगल को हमें आहुरी बढ़ाई देली पूरा एम्ति कर देली ताले एई भलिया जदी कर देली ताले ए जो आर टा जो अछि ये आर आहुरी बढ़ी जिवो आहुरी बढ़ी की कोन होबो ना एपोर्ट को पळे आसीबो आर इज ग्रेटर देन 90 डिग्री हे जिवो ताले सही समय ये होची आई रहिची याको क्रिटिकल कहबानी एबे ताले याकू कोन कहै छै ना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भलो की बुझु थाओ ना कहूची रिफ्लेक्शन किंतु फेनोमेना को नियम काम करछि से रिफ्रैक्शन नियम काम करछि ताले इट से कोन कहला ना टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन में कहा को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में कहा को कहबा द एंगल ऑफ इंसिडेंट फॉर सम एंगल ऑफ इंसिडेंट व्हेन द रिफ्रैक्टेड एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री और ऑब्ट्यूज एंगल बा कोन सेटा कहै छै सूक्ष्म कोण स्थूल कोण हां स्थूल कोण ताले आर कोन हे जिवो ना ऑब्ट्यूज एंगल हे जिवो और आर टा ग्रेटर देन 90 डिग्री मीनिंग एका और ये होची कोन ना स्थूल कोण जहा भी हो तमे कोन करिवो ना एमिति गोटी इंसिडेंट एंगल चूज करिवो जहा पर कि कोन हबो ना आर टा ग्रेटर देन 90 डिग्री ही पळेबो ताले सही केस रे हम ताको कोन बोली कहबा ना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोली कहबा ता डेफिनेशन कोन दबो द एंगल ऑफ इंसिडेंट फॉर व्हिच द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर व्हिच the refracted the angle of refraction is greater than कोन 90 डिग्री और ऑब्ट्यूज एंगल एटा गोटे कहि परिबो और कहि परिबो कोन द लाइट रे और बीम व्हाटएवर और पेंसिल तुम जहा भी कहू लाइट रे रिटर्न बैक रे कहि ना तेनो रिटर्न्स बैक टू द सेम medium of incidence same medium of incidence is known as कोन ना total internal reflection तले जो गुण द्वारा लाइट जते बेले कोठु जाउथबो नाइ सबु तीनटा सारा डेंसर मीडियम रो रेयर मीडियम को जो गुण द्वारा लाइट टी डेंसर मीडियम रो रेयर मीडियम को ट्रैवल कला समय रे जो माध्यम रो जाई थाए सेही माध्यम को फेरी आसे और प्रतिसरण कोणटा ग्रेटर देन 90 डिग्री हे जाए सही समय ताको कोन बोली कहै छै ना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहै छै जदि हमें कहू छै रिफ्लेक्शन बोली किंतु ये रिफ्लेक्शन नुहे ये होची रिफ्रैक्शन रो नियम को मानि कि हमें करू छै एटा को
ताले एतिकी होची तार पाठ ताले कोण ना सिंपल रिफ्रैक्शन होची कोण ना आसला लाइट पडला आर देखि बाहरी पळेला आई आउ आर एटी कोण होची ना आर इज ग्रेटर देन आई होची एई केस रे ताले एई जगह रे कोण होची ना पुणी आई रो वैल्यू आउ टिके बढ़ेले से कोण होला ना नियम कहूची आई बढ़िला माने आर बढ़िबो कहूची ताले जदी आई बढ़िला ताले एपटे आर बढ़ी केते 90 डिग्री हे गेला ताले एमिति गोटे ताले क्रिटिकल एंगल काहा कहबा ना एमिति गोटे एंगल ऑफ इंसिडेंस को कहबा जोठी की तार कोण हबो ना प्रतिसरण कोणटा 90 डिग्री हे जिवो और रिफ्रैक्टेड रे एटा इंटरफेस ऊपर जिवो और रिफ्रैक्टेड रे एटा 90 डिग्री और परपेंडिकुलर हे जिवो काहाको ना अभिलंब को बा नॉर्मल को तले सेते ताको कोण बोली कहबा ना क्रिटिकल एंगल बोली कहबा पुणी आहुरी एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाई देले आहुरी बढ़ेले कोण हबो ना जोठी आर 90 डिग्री हे होउतला एबे आर ग्रेटर देन 90 डिग्री हिजिवो अर्थात जो मीडियम रो जाइथिला सेही मीडियम को से पळेबो फेरिकी ताले एठी हमें काहाको कहबा ना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ना इट इज ए टाइप ऑफ रिफ्रैक्शन फेनोमेना when light is traveling from denser medium to rarer medium the refracted ray comes back to the same medium of incidence or the refracted angle becomes greater than 90 degree the phenomena is known as total internal reflection ताले एई सब यार सब एप्लीकेशन किछि उडा अछि मु तमनु पढेबी नेक्स्ट क्लास रे आज बड़ होइलानी वीडियो बड़ होइलानी 26 मिनिट 30 मिनिट हे जिवो वीडियो अपलोडिंग टाइम लेबो बहुत मेमोरी सब जिवो मोर तो यार एप्लीकेशन सब अछि नेक्स्ट क्लास को पढेबी तमनु एप्लीकेशन कहले कोडा नै जो तुमे जो मेला रे देखि नथिबो से जो गोटे टॉर्च जोळ थाए ऊपर बहुत सारा झुरा जो झुली थाए लाइट जो पास कर थाए गोटे सरू जो प्लास्टिक देहरे लाइट पास कर थाए देखिबो तले सेबडा सब ऑप्टिकल फाइबर बोली कहा जाए ताकू ऑप्टिकल फाइबर कहा जाए ता थ्रू रे कोन हुए ना एई नियम टा काम करि करि जाए नेक्स्ट क्लास रे हम पढिया कि लाइट टा तमे जानिछ लाइट सरल रेखा रे गति करे एमिति गोटे नियम बाहरिबो देखिबो लाइट केमति बंका हेकि जीवो सेठी बंका हेकि जीवोनी किंतु हमें जुआडे चाहिबा लाइट को सही डायरेक्शन में पठेई परिया तमे टॉर्च मारुछ तमे घरु मारिबो रास्ता को ता मझिरे जदी लोक आसी जीवो तले तमरो आउ लाइट जीवो नै किंतु एमिति गोटे नियम अछि ता मझिरे लोक आसु भालू आसु बाघ आसु जेमति हेले भी लाइट कोन होबो ना तुमे जोठी चाहुतबो सेठी नै पकेई परिबो सेटाको ऑप्टिकल फाइबर बोली कहा जाय आज जे नेट रे सर्च कर दिथिबो ऑप्टिकल फाइबर कोन तुमे सुनिथिबो न्यूज रे किछि दिन आगु जो हमर पडिला चेन्नई रो अंडमान निकोबार पर्यंत पडिला ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट पे ऑप्टिकल फाइबर पड़िछि आ तमे माने सुनि के आश्चर्य हबो तमे माने भाबुछ जे मोबाइल केमति काम करूछि तमे घरु कथा होउछ सीधा टावर को जाउछि टावर जंप करि करि सेपटे जाउछि नै सेमति जायनि से मोबाइल सिग्नल तुम मोबाइल रु गला टावर को टावर रु सब टावर सब जतिकी लिंक अछंती सब गुडा ऑप्टिकल फाइबर रे कनेक्टेड हेतै बेले बेले देखुथबो तुम घर पाखरे सब रास्ता ताड़ी की फोन वाला सब तार पकौथबे मोटा मोटा तार सब पकौथबे ब्लैक कलर सेडा सब गुडा को ऑप्टिकल फाइबर यूज करके आमे जहां भी आज कम्युनिकेशन सिस्टम यूज करछे सब गुडा को ऑप्टिकल फाइबर मैक्सिमम ऑप्टिकल फाइबर को नेकी तैयारी हेतै आउ तुम अमेरिका रु भारत केबे गुडे नेट रे सर्च करी देखि दो गूगल रे देखियो केमती ऑप्टिकल फाइबर बिछाई छि समुद्र रे पूरा गोटे गोटे कॉन्टिनेंट्स रो महाद्वीप पूरा ऑप्टिकल फाइबर बिछाई छि अमेरिका रु अफ्रीका रु एशिया रु ऑस्ट्रेलिया सब जगह को ऑप्टिकल फाइबर बिछाई छि ऑप्टिकल फाइबर बिछाई छि बोली आमे एतिकी शीघ्र माने तुमको कोन ना इंटरनेट एक्सेस करि परछ फॉर एग्जांपल मु ए वीडियो टा जो शूट कली आकु मु भी यूट्यूब रे लोड करबी यूट्यूब रे लोड कले कोन हो गले मु तो वीडियो शूट करके मो मोबाइल रे रखछि ताकू जेतले मु यूट्यूब रे लोड करबी फास्ट कोन करबो ना मो मोबाइल से डाटा टा को नेकी टावर को पहुंचेबो टावर ऑप्टिकल फाइबर थ्रू ता कोन करबो ना जो कंपनी रो जो एक्सचेंज अछि से जियो हो किबा बीएसएनएल हो जो भी कंपनी रो एक्सचेंज थिबो देखियो गोट जाय रे ऑफिस थिबो सेही जगह को पठेबो से जगह से माने कोन करबे ताको ऑप्टिकल फाइबर चैनल थ्रू रे छाड़ देबे कोठी ना अमेरिका रे अछि गूगल रो सर्वर अमेरिका रे गूगल रो सर्वर अछि से गूगल रो सर्वर से जाई स्टोर होला वंस गूगल रो सर्वर रे स्टोर हे गेला माने तमे कोन करबो तमे जत्ते बेले चाहिबो से लिंक को क्लिक कले कोन हो ना सेही वीडियो टा बाहरी पडियो से गूगल सर्वर रे स्टोर हे दिबो अमेरिका रे स्टोर हे दिबो तमे एठू लिंक क्लिक कलो से संगे संग पळे आसीबो केमिति पळे आसीबो देखो अमेरिका रु इंडिया बहुत दूर रास्ता फिर भी से मैं गोटे क्लिक कले वीडियो पळे आछे टिके चक बोलुची बफरिंग होची संगे संगे पळे आछे केमिति पळे आसे ना मु कोन कहली ना लाइट ट्रैवल करछ लाइट रो स्पीड ना बहुत बेसी 3 into 10 to the power 8 खाली मीडियम रे एयर मीडियम रे गले 3 into 10 to the power 8 ग्लास रे गले 2.5 ग्लास रे गले 2 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड एते हाई स्पीड जो रहूची सेति में अमेरिका रो इंडिया पहुंचिया पे डाटा बहुत कम समय लागुची एडा ओनली बिकॉज ऑफ कहा पे ना ऑप्टिकल फाइबर अछि बोली हमें एतिक शीघ्र इंटरनेट एक्सेस करूछ आउ कोन ना एबे साइंटिस्ट माने चिंता कले जे ऑप्टिकल फाइबर को भी चेंज कर देबे केमती ऑप्टिकल फाइबर चेंज कर देबे
ନା ତୁମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ସବୁ ଗୋଟେ ସାଟେଲାଇଟ୍ ବସେଇଦେବେ। ଏମିତି 12,000 ସାଟେଲାଇଟ୍ ପୃଥିବୀ ଚାରିପାଖରେ ବସେଇବେ। 12,000 ସାଟେଲାଇଟ୍ ପୃଥିବୀ ଚାରିପାଖରେ ବସେଇବେ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଏରିଆ ଉପରେ ଗୋଟେ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଥିବ। ଆଉ ଉପରେ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଥିଲେ ସେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଦେଇପାରିବ, ଯୋଗେଇପାରିବ। ନା ଶୁଣୁଥିବ ବେଳେବେଳେ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ବାହାରୁଛି, ଏବେ ଦେଖିବ ବହୁତ କ'ଣ, ସେ ସ୍ପେସ୍ ଏକ୍ସ ଯୋଉ କମ୍ପାନୀ ଅଛି ନା, ସେ ଥରକୁ 60ଟା ଲେଖା ପଠେଇ ଦଉଛି। ସ୍ପେସ୍ ଏକ୍ସ ଥରକୁ 60ଟା ଲେଖା ଷ୍ଟାରଲିଙ୍କ୍ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଯୋଉ ଅଛି ତାକୁ ପଠଉଛି ଥରକୁ 60ଟା। ଏମିତି 12,000 ସାଟେଲାଇଟ୍ ସେ ପଠେଇବ। ସାଟେଲାଇଟ୍ ପଠେଇ ଦେଲା ପରେ ଆଉ ଏ ଅପ୍ଟିକାଲ ଫାଇବର କିଛି କାମ ହବନି ଏବେ। ସେତେବେଳେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଆକ୍ସେସ୍ କରିପାରିବ ତୁମେ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କ'ଣ ସେ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଥ୍ରୁରୁ। 12,000 ସାଟେଲାଇଟ୍ ପଠେଇବ। 60ଟା କୋଟି ସାଟେଲାଇଟ୍ ପଠେଇ ସେ 700ଟା ସାଟେଲାଇଟ୍ ପଠେଇ ସାରିଲାଣି ଏଇ ଭିତରେ। ସ୍ପେସ୍ ଏକ୍ସ ଯୋଉ ପଠଉଛି, ନ୍ୟୁଜ୍ ଟିକେ ଦେଖୁଥିବ, ଘରେ ତ ରହିଛ କିଛି କାମ ନଥିବ, ଦେଖିବ ସ୍ପେସ୍ ଏକ୍ସ ପଠେଇଥିବ, ଫାଲକନ୍ 9 ରକେଟରେ ପଠଉଥିବ। 60ଟା ଲେଖା ସାଟେଲାଇଟ୍ ପଠଉଥିବ, 700ଟା ପଠେଇ ସାରିଲାଣି, 12,000ଟା ସାଟେଲାଇଟ୍ ଟୋଟାଲ ପଠେଇବ। ମାନେ ପୃଥିବୀଟା ପୁରା ଜାଲ ଜାଲ ଭଳିଆ ଦେଖାଯିବ ଉପରୁ। ଏଇଟା ଯଦି ପୃଥିବୀ ହେଇଥିବ, ଏ ଯଦି ଆର୍ଥ, ୟା ଚାରି ପାଖରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଏମିତି ପୁରା ପୁରା ପୂରିକି ରହିବ ପୁରା ସାଟେଲାଇଟ୍। ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ସାଟେଲାଇଟ୍ ରହିଥିବ। 550 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ସାଟେଲାଇଟ୍, ଲୋ ଆର୍ଥ ଅର୍ବିଟରେ ସାଟେଲାଇଟ୍। ମାନେ ତମେ ରାତିରେ ବି ଦେଖିପାରିବ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଗୁଡାକ। ଏତେ ସାଟେଲାଇଟ୍ ପଠେଇଦେବେ, 12,000 ସାଟେଲାଇଟ୍ ପଠେଇଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ପାଇଁ ଆଉ ତାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାନି। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ତୁମେ ସମୁଦ୍ରରେ ପକେଇକି ଯାଇଛ ନା ସେ ଅପ୍ଟିକାଲ ଫାଇବର, କିଏ ସାର୍କ ଆସିବ କାଟିଦବ, କିମ୍ବା ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଜାହାଜ ଗଲା କୁଟିକି ଛିଣ୍ଡିଦବ, ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଥରେ ଉପରକୁ ପଠେଇଦେଲି, ସେ ତ ତାର ଦେଖିବ ସବୁବେଳେ, ତେଣୁ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏଇଆ ସବୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଏଇଥିରେ ଚାଲିଛି, ଟୋଟାଲ ଇଣ୍ଟରନାଲ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ ଥ୍ରୋରେ ଚାଲିଛି। ଏବଂ ପଢେଇବି, କିଛି ଦିନ ଗଲେ ପଢେଇବି, ତମେ ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥାଉ ଆଜି।